At times now is the voice of the oppressed and the downtrodden. Today, we get you a story that no other channel has dared to report. This is because Latin's media is notorious for only pushing a line that suits their narrative. In their world or their view, a story isn't a story till a victim is from the minorities or the perpetrators are Hindus. But in Palamu in Jharkhand, where Times Now's reporting team has been camping for 48 hours, the victims belong to the Dalit caste, the poorest of the poor amongst Hindus. These oppressed have neither the clout nor the resources to fight for justice. Today, Times Now will fight their fight. Times Now's Mohit Bhatt travelled to Palamu in Jharkhand, where 50 families became refugees overnight in their own land as a rampaging mob razed their homes. They cry and plead as they narrate their ordeal. Their houses have been razed by a bulldozer and their places of worship desecrated. The survivors claim that the perpetrators are local Muslims. A shocking incident has come to light from Palamu district, where the houses of Dalit who were living over here, they were completely razed down by the Muslim community, and they used JCB and bulldozer to raze down their houses illegally. And as of now, the local MLA from the area of the BJP is coming to meet them, and they are telling them all their problems that they face. Now, what the families over here say is that they do not have any proper facilities. Now their houses have been razed, and their basic demand is that their houses should be rebuilt. And they are also saying that the temple which was there, a shivling which was there in their locality, whose houses were being razed down by the Muslims over here, they have been completely destroyed. Now they have been put into makeshift shelter at this particular old Thana building of Palamu, and you can see how exactly they are talking to the MLA, and they are requesting them to rehabilitate them. हम लोग 1-1.5 बरस से वहाँ रहे थे, खानदानी जगह जमीन हम लोग का है सर, तो वहाँ हम लोग रह रहे थे 3 बरस से चलकर वहाँ, और हम लोग सब पूरा 4400 आदमी का हम लोग के ट्रैक्टर में बुकिंग करके वहाँ बिका गया है सर। तो अच्छा ये बताइए कि जब बुलडोजर लाया गया, जेसीबी लाई गई, आप सबके घर तोड़े गए? हाँ, इस्राइल मुखिया घर तोड़वाए हैं साहब। इस्राइल मुखिया, हाँ, खड़ा होकर इस्राइल मुखिया घर तोड़वाए हैं हम लोग। की बात है, परसों की बात है? परसों रोज की बात है सर, कल सांझ के बात है साहब, कल तक लेटेस्ट भी वहाँ चला है साहब। कल तक भी कितने लोग हैं? आप क्या मांग करते हैं आप, और खास तौर पे कौन कौन लोग थे? आप लोगों को पहचाना कौन कौन लोग थे, और उन्होंने आपसे क्या कहा आपके घर तोड़ते हैं? सब मियाँ लोग हैं सर वहाँ के मियाँ थे, मुखदार डीलर थे सर, जनक थे सर, और गोविंद पाल थे, और वहाँ के। और क्या कहा गया आपसे? जमीन आपकी नहीं है, कहा क्या गया? रसूल मियाँ सर। क्या कहा क्या गया आपसे? क्यों तोड़ रहे हैं आपके मकान? कह रहा है कि उन लोग बोल रहा है पूरा मियाँ समाज की यहाँ नहीं रहना है, भागो यहाँ से, तुम लोग नहीं भागोगे तो काट देंगे बल्ले बच्चे को। धमकियां भी दी गई? हाँ जी, मारपीट भी किया प्रशासन की तरफ से। आपको मारपीट भी करी गई? हमारा लगा के ढोस दिया है मालिक, मेरा शिवलिंग सब बिक दिया है। बहुत हम लोग। अब आपकी क्या मांग है, क्या चाहते हैं? क्योंकि आप लोग अभी यहाँ खुले में रह रहे हैं, खाने वाने की सुविधा भी नहीं होगी आपके पास, प्रॉपर क्या है सुविधा? तो सर हम ये मांग रहे हैं कि हमारा वहीं सब कुछ दिया जाए साहब। People over here, they are living in fear. They are again saying that if the proper protection is not being given to them, then they are also living in fear. So as of now, these are the people over here who have been brought in over here at the makeshift old Thana building over here, and what the local MLA and the other the government officials say that they will be rehabilitated. But the question is, how exactly and how does people from a certain community had the audacity to raze down their houses with a bulldozer, and what exactly was the administration doing? Mohit Bhatt reporting on ground over there, but Times Now also went to the spot which they call their home. They tell us how JCBs and bulldozers plowed through them. They also tell us how they pleaded repeatedly with Mukhtar and his accomplices to at least spare the temple, but to no avail. Today we are reporting from the Palamu district over here in Jharkhand, and what you see on the ground is not just the debris or the stones over here. These are the remains of houses of Dalit which were being razed down by the members of Muslim community. Now 2 days ago, members of Muslim community came over here and forcibly, what they say is that they were beaten, and the Muslim community said that this land belongs to the Eidgah, and hence they have no right to live over here. Eidgah की जमीन इस पे किसी पे नोटिफाइड नहीं है? यह ईदगाह की जमीन नहीं है, और यह मदरसा का जमीन है।
ये जीएम लैंड है। जी यह जीएम लैंड है। आरोप का ये भी आरोप है कि शिवलिंग तोड़ा गया, मंदिर तोड़ा गया, उनके हाथ जोड़ते हैं। यह देखने वाली बात है। यहाँ देखिए तुलसी का पौधा वहाँ पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन अली अरोड़ा से कहूँगा आप दिखाइए। यह सनातनी है कि सनातन धर्म में लोग ये किस तरह से यहाँ पे जो देखिए आप शिव जी का पूजा करते हैं, इनकी ये शिवलिंग की पूजा करते थे। यहाँ पे जो है पूरा ये जो है तुलसी का एक मंदिर बना रखा है। सनातन धर्म में आस्था का केंद्र ही है। वो पत्थर को ही पूजते हैं और भगवान मानते हैं। ये भी तोड़ा गया बिना जी, उसे भी वो ये कह रहे हैं कि हम हाथ जोड़ते रह गए, हम हाथ जोड़ते रह गए। जेसीबी लगा करके तोड़ा गया, उसमें किसी चीज को बरगलाया नहीं गया कि इसको साइड किया जाए। Times Now is the only channel who is at the spot because we bring out the real news and the real stories that are there in our country. Muslims have completely razed the society over here. Around 50 to 20 houses were being completely razed over here by Muslim community forcefully with the use of JCB. The questions are also being raised on the Hemant Soren government. And the local MLA went to meet Dalit families now have been left disconsolate and destitute. He blames the Soren government of minority appeasement. देखिए, सबसे पहले तो दुखद बात है जी कि जो सरकार वर्तमान सरकार हेमंत सरकार है, जिहादियों को बढ़ा दिया है। हर एक जगह जहां देखिए अंकिता कांड, तो फलना जगह ई कांड, तो चतरा कांड, और यहाँ भी कांड जो है बहुत दुखद समाचार है। इन लोगों को जमीन देंगे 5 से 10 डिसमिल और अम्बेडकर आवास बनाएंगे और उसके बाद इन लोग को भोजन व्यवस्था सारा चीज हम लोग करेंगे, पढ़ाई की भी व्यवस्था करेंगे। Let's take this across, in fact, to Mohit Bhatt, who's reporting from on ground in Palamu. Mohit, this is a very shocking state of affairs as far as what's happened on ground is concerned. What is the administration telling you? You have spoken to the district magistrate. What is the action they propose to take against these individuals who have used bulldozers and razed to the ground the houses of so many families? It's not one or two, but dozens of people who are now homeless because of this use of force by a certain section. And at the same time, you know, what are the cases that have been slapped? How close are they to giving justice to these individuals who've lost their homes? Well, Madhav, Times Now is the only channel who is reporting on this story from the ground. Now, when we reached over there at the old station building where all these people whose houses were being razed, they were being shifted over there, they clearly told us that forcefully, day before yesterday, a section of a group came over there, people from Muslim community came over there, and they get out the whole area, and they also beat up all these members, and they were lodged into the truck and they were sent into a jungle. Now they were sent over there, and then the bulldozer was being used to raze down their houses. Now you see the audacity of the goons over here, that they are beating up the people who are living over there, and they are using bulldozer to completely raze down their houses. Now where exactly was the administration? And when we asked this question to the administration, we had word with the DC Palamu. He basically stated that the action is being taken. As soon as they got to know about the news, they reached to the spot, and as of now all these people have been shifted to makeshift location over there in the old Thana building of that particular area. But the victims all say that they want to be rehabilitated at the same place. They want proper accommodation because they say that they were not being allowed to take their lodgings. They were not being allowed to take their clothes. The clothes that they were wearing were being provided by the police. So the question is that it's been almost 2 days, only 3 arrests have taken place. Where exactly are the other accused, and whether the stringent action would be taken or not? Because the BJP also says that. Our guest now joining us, Mohit. Will continue to track all those developments from on ground with you, but let me first go across to Rahul Ishwar, activist. Also with us is Kanish Singh, General Secretary of the Bhim Army. We have with us Dushan Nagar, political analyst, and Abdul Basit, political analyst, also joining us. Abdul Basit, what action is the state government taking? 50 people have lost their homes. उनके घर लिटरली उजाड़े गए हैं. जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है वहां पे उनको भी डैमेज किया गया है, बुलडोजर चलाया गया है. आखिर क्या हो रहा है कानून व्यवस्था में झारखंड में? देखिए माधव, स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है स्टेट को चलाने का, मगर 90% स्टेट्स को जो पीछे से हैंडल कर रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है. मगर सेंटर ने क्या किया है सर? ये तो प्योर लॉ एंड ऑर्डर इशू है. अदा करना चाहूंगा आज किसी को भी घर से बेघर कर सकते हैं. इस तरह से करना चाहूंगा कि दलित जितने भी वहां के महादलित जिनको आज एसडीपीओ को भी निलंबित किया गया, और डीसी का जो अनाउंसमेंट है वो एक सराहनीय कदम है. कम से कम एटलीस्ट 50 जो भी पलामू के जो हमारे
बेचारे महादलित लोग थे उनको दोबारा से घर बनाने का, और जिस मंदिर को पूजा स्थल को पूजा करते थे उसको भी उजाड़ा गया है। इसके पीछे देखिए ना अधिकारियों का पूरा सर, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मुझे ये बताइए अब्दुल बसीद, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ है? राज्य सरकार और पुलिस क्या सोई हुई है वहां पे? किसकी गिरफ्तारी हुई अभी तक? देखिए कार्रवाई पूरी तरीके से चल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई सर घर तोड़ने वाले, मंदिर तोड़ने वाले इंसानों को क्या पुलिस ऐसे बख्शेगी, ऐसे छोड़ेगी? क्यों बचा रही है इन लोगों को? हेलो, हाँ जी, मैं आपसे यही, क्यों बख्शा जा रहा है उन लोगों को? अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं लिया गया? देखिए एसडीपीओ को अभी पलामू एसडीपीओ को निलंबित कर दिया गया। कार्रवाई सारी संरचनाएं कर दी गई हैं। बस वेट कीजिए, 2 दिन के अंदर गिरफ्तारियां भी इसमें संभावित हो जाएंगी। बहुत लेट हो जाएगा सर। 24 घंटे पहले से हम ये डिस्कस कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे को, और आप कह रहे हैं 2 दिन और रुकिए। किस तरह की न्याय व्यवस्था चल रही है? किस तरह की? I am shocked to hear the explanations today. Absolutely shocked to hear the explanations today. And I want to bring in Kanish Singh. Kanish Singh, I mean, we were discussing this story 24 hours ago. 24 घंटे बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है. What are the cases that have been filed? Where are the behind bars? बहुत धन्यवाद देता हूँ कि टाइम्स नाउ इकलौता चैनल है जो इस मुद्दे पे, महादलित और दलित के मुद्दे पे अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। दूसरा, मैं इन्हें ये बात इनसे पूछना चाहता हूँ कि सरकार जो है वहां पर सिर्फ क्या मुस्लिम वोटों पे ही, क्योंकि कल भी हम लोग मिले थे, क्या हम मुस्लिम वोटों पे ही इनकी सरकार बनी थी? क्या दलित और महादलित की वहां पे संख्या इतनी कम है कि हम लोगों को न्याय मांगने के लिए यहाँ पे टाइम्स नाउ पे डिस्कस करना पड़ेगा? आपकी सरकार इसलिए बनवाई थी हमने कि आप लोग जो है अपनी तानाशाही दिखाए, वहां पे पार्टी करें, इसलिए आपकी सरकार बनवाई थी हमने। जिस प्रकार दलित के लिए भीम आर्मी बहुत मजबूती से काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से, बिल्कुल भीम आर्मी बिल्कुल कर रही है। भीम आर्मी सिर्फ आपके, मैं आपकी पार्टी की सराहना करता हूं। आपने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें सर आपने क्या काम किया है सर इस केस में? इस केस में आपने अपनी सीरियसनेस नहीं दिखाई है, क्योंकि आपने कोई कार्रवाई नहीं की। अब्दुल बसीद जी, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। कौन सी गिरफ्तारी हुई है बताइए? हेमंत सोरेन खुद आदिवासी समाज, कौन सी गिरफ्तारी हुई है? देखिए डायरेक्टली एक नाम बताइए जिसकी गिरफ्तारी हुई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हेमंत सोरेन आदिवासी समाज से आते हैं या नहीं आते हैं? हेमंत सोरेन जब आदिवासी समाज से आते हैं तो उनको अपने समाज का जब दुख दर्द पीड़ा समझते हैं, तो दलित महादलित के नहीं। अभी देखिए बहादुर उड़ाव जो एक बहुत बड़े सीनियर अधिकारी हैं पलामू के, बहादुर उड़ाव, अभी मेरी फोन पे उनसे बात हुई है। अभी बहादुर उड़ाव साहब हैं, बहुत सीनियर अधिकारी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता था। मेरी बात हुई है, पूरी तरीके स्टेट गवर्नमेंट दलित और मजदूरों के साथ खड़ी है, और उनका मंदिर निर्माण के लिए भी हमारी एक संस्था है जो कि पूरी तरीके से अभी पहुंचने वाले सब लोग, और उस मंदिर निर्माण में भी पूरी की पूरी मजबूती के साथ। सर घर निर्माण, मंदिर निर्माण तो और बात है। अगर कल किसी का घर आके तोड़ता है, कल अगर आपके घर के ऊपर बुलडोजर चलता है, क्या आप नहीं चाहेंगे कि उनके ऊपर कार्रवाई हो? अब्दुल बसीद, इसमें इंक्वायरी चल रही है। अरे कौन सी इंक्वायरी सर? इन लोगों ने देखा है कि कौन परपेट्रेटर्स है, कौन एक्यूज्ड है, उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। क्या उनको स्टेट गवर्नमेंट को धराशायी करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा इल्जाम किया ज्यादा हो चुका है। पूरे पुख्ता सबूत है हमारे पास। मेरी अभी बहुत बड़े सीनियर अधिकारी हैं बहादुर उड़ाव, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा था। अभी उनसे बात हुई है, केंद्र सरकार के एक कौन पे ये सारे काम हुए। अब्दुल बसीद जी, आपको जिससे बात करनी है आप करिए, कार्रवाई होनी चाहिए। 24 घंटे से ज्यादा इंतजार कर रहे हैं लोग, सड़क पे आ गए हैं। हाँ, it's a crime. I agree with everybody, every panelist. It's a 100% crime. But the crime, who is the criminal? Okay, let me bring in Rahul Ishwar on that. Okay, Rahul Ishwar is going to come in now. Rahul Ishwar, is this acceptable? It's fine. The DM may have provided some kind of temporary shelter, some kind of clothing, etc. to those who are affected individuals. They are amongst the poorest of the poor. They are the individuals who live on the margins of our society. We all know it. But the fact that is absolutely shocking is that in Palamu, the individuals who actually carried out this incident of violence, they are scot-free today. Absolutely. There is no action that has been taken against them. Why? As an ordinary citizen of India, I would like to thank Times Now for highlighting this. What happened in Palamu was extremely shocking, and please remember, this is a cognizable crime, a cognizable offense, and this is non-bailable too. We should invoke the
stringent provision of the SC Act and, support and protect our Dalits and Mahadalits from such kind of atrocities. Those who are having this are having an anti-national, anti-social, anti-Dalit mindset. See, this is absolutely unacceptable, and more national outrage should be there. This is beyond any kind of division, that our such poor sections of the society, they are being trampled upon. Their right, their God, their deity, their temple and their houses were trampled upon. One more construction is a different thing. But doing this absolutely horrendous and horrible thing in 21st century is a shame to all of us. It should shake our consciousness. There should be a national outrage on what happened at Palamu and to our Mahadalit communities, and I hope strongest of actions and arrests take place today itself, not even tomorrow. Let me take that question across to Dushyant Nagar. Dushyant Nagar जी, देश के अति पिछड़े वर्गों पर भी इस तरह की जब कार्रवाई होती है, इस तरह की एक्शन होती है, घर तोड़ा जाता है, मंदिर तोड़ा जाता है, लेकिन अपीजमेंट की राजनीति बंद नहीं होती है इस देश में, ये कह रही है बीजेपी। बिल्कुल सही बात है, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरीके से ये घटना पूरी अंजाम दिया गया है, इसका कोई बचाव नहीं किया जा सकता। लेकिन राज्य सरकार की अगर आप कार्यप्रणाली को देखें तो उन्होंने तत्काल कार्रवाई की है, केस रजिस्टर्ड किए हैं, पीड़ितों के लिए नए मकान, नए घर, स्कूल, सारी सुविधाएं, नौकरी, सब चीज़ों का इंतजाम किया जा रहा है और जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और वो जेल की सलाखों के पीछे बहुत जल्दी होंगे। और दूसरा मैं एक और बात आपको कहना, कार्रवाई क्यों नहीं हुई दुष्यंत जी? कार्रवाई चल रही है, 24 घंटे से ज्यादा हो गए। आने वाले 24 घंटों में आप देखेंगे जो दोषी हैं वो जेल के अंदर होंगे। हैं उनको आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार करने में क्या दिक्कत है सर? नहीं साहब, ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है इस देश में। बिल्कुल कानून है और कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। अत्याचार करते हैं, जो दलित एट्रोसिटीज एक्ट है वो बहुत पावरफुल एक्ट है। पुलिस और प्रशासन के पास सारे कानून मौजूद हैं, अगर काम करने की उनके पॉलिटिकल विल हो तो कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन इस केस में नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या कारण है? सख्त कार्रवाई होगी, जांच अधिकारी सारे एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, सर्वेलांस की मदद ली जा रही है। सर जांच कोई भी व्यक्ति कौन सी जांच कर रहे हैं? कहीं भी भागने की कोशिश करेगा, लोगों के उसको भागने नहीं दिया जाएगा। लोग सड़क पे आ गए, सख्त कार्रवाई आपके सामने 50 आई विटनेसेस हैं, आपके कैमरे बताना चाहता हूँ, 50 आई विटनेसेस हैं, चश्मदीद गवाह हैं, इनसे पूछिए, नाम तक बता रहे हैं, पता बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन पुलिस से कार्रवाई नहीं होती। नहीं, आप सीमा पात्रा जी ने क्या हाल किया? बिल्कुल, और सीमा पात्रा को भी अरेस्ट हुआ है और वो उनके बारे में सरकार को ही पहले दिन अरेस्ट करना चाहिए था, 8 साल लेट हुई है वो अरेस्ट। आप बात नहीं सुनते, सरकार ने क्या कार्रवाई की है उसे आप सुन नहीं रहे हैं। सर, आप एक दल विशेष की सरकार को, गठबंधन विशेष की सरकार को लक्ष्य करके आप उसको निशाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देश के महादलितों से अधिक यूपीए से अधिक किसने काम किया है? तो आवाज उठाती है टाइम्स नाउ। यूपीए से अधिक किसने काम किया है? आप बताइए, पिछले 15 साल में अगर काम किया तो यूपीए ने काम किया है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। नहीं, दुष्यंत नागर, एक सिंपल सवाल उठाया जा रहा है, अगर इनके खिलाफ हिंसा की घटना हुई है, हिंसा की वारदात हुई है, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये पूछना लाजमी है, क्योंकि कानून व्यवस्था स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से विफल होती दिख रही है इसमें। देखिए, इस स्टेट सरकार को तो कमजोर करने की, गिराने की कितने षड्यंत्र और कितनी कोशिशें हो रही हैं वो पूरी देश, पूरी दुनिया जानती है, वो तो कहीं छुपा नहीं है। लेकिन तो ये किसका षड्यंत्र है, जरा बताइए। प्रोसेस में है, ये किसका षड्यंत्र है? शीघ्र कनीश सिंह, ये भी षड्यंत्र है, सरकार गिराने का षड्यंत्र है, कब्जे में इसमें षड्यंत्र वाली कोई बात नहीं है। मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैं और राज्य सरकार और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या राज्य सरकार जो है जिन्होंने ये उत्पीड़न किया है, जो 50 लोगों को वहां से निकाला है, उनके साथ मारपीट करी है, क्या उनके ऊपर राजद्रोह लगाएगी? और मैं सेंट्रल सरकार से भी इस चीज की अपील करता हूं कि उनके ऊपर जो है देशद्रोह का भी है एक वो लगाएं, SC/ST एक्ट तो है ही, उसके साथ देशद्रोह और राजद्रोह भी लगाएं। All right, we'll have to leave it there. We'll have to leave it there. Will the state government listen? Will the center listen? These are some very, very pertinent questions coming in from our panelists at the moment. Rahul Ishwar, Kanish Singh, Dushyant Nagar, Abdul Basit. I'd like to thank all of you for joining us this evening. Very shocking incident coming in from Palamu.